Hi dear students, good morning to all. Welcome to all my dear students to your YouTube channel Srinivas Chemistry, and also you can see our institution under the YouTube video and the online classes Srinivas Chemistry. So dear students, today we will discuss one of the important chapter of 12th standard. The name of the chapter of very important chapter. This is your alcohol, phenol and ether. So now this is the chapter number 2 of organic chemistry. Today our topic is your alcohol. ये नाम तो बहुत लोग सुना होगा. Alcohol. So today our topic is your alcohol. Alcohol. तो ऐसे कुछ नहीं है. Alcohol is one of the important chapter of organic chemistry. As in our last class we completely seen the haloalkane and haloarenes. If the students who want to see the video, they also move to our YouTube channel and type Srinivas Chemistry with capital letter Srinivas Chemistry. Then you can see all the details about the haloalkane and haloarenes. So my dear students, no delay to start. Now we'll start. Today topic is your alcohol. So the alcohol is the functional group of alcohol is your OH. Alcohol stands for the functional group OH, and the general formula GF is your ROH. General formula of alcohol is your ROH, or we can write CnH2n plus 1 OH. So general formula of alcohol, if you see the suffix, so suffix is your OL, suffix is your OL, alcohol, and the series name of alcohol, if you will see series name, its series name is alkanol, IPS name or alkanol. In series name we say alkanol, the IPS name. So my dear students, today our topic is your alcohol. It is one of the interested chapter. It is one of the very important chapter also for every examination. For your 12th board also the entrance examination, so questions are coming from this chapter. So my dear students, today we'll start now. The chapter name is alcohol. So your alcohol stands for the functional group OH, oxygen containing organic compound. So इनमें से alcohol आता है, oxygen containing organic compound. So first chapter of 12th standard already we discussed about the halogen containing organic compound, in which we discussed about the haloalkanes and the haloarenes. But today we'll start another organic compound of carbon with the oxygen. Carbon oxygen के अंदर जो organic compound बन रहा है. So carbon is making the compound with the oxygen, your alcohol, your phenol, your ether, your aldehyde, ketone, acid. These are the organic compound and acid derivatives. We will discuss here how this is the organic compound of carbon with the oxygen. But today our topic is only alcohol. In this video, we will just discuss about only the alcohol, their preparation, their property. So my dear students, not wait and start with your pen and paper and write functional group of alcohol OH, general formula for alcohol ROH. R is the alkyl group which is used here, oxygen 1 deficient and making covalent bond, as all organic compounds are covalent bonded. So alcohol is general formula CnH2n plus 1 OH. We are studying aliphatic alcohol. So what are alcohol? What is the definition of alcohol? Nothing, is the hydroxyl derivative, OH group, hydroxyl derivative of hydrocarbons. Hydroxyl derivatives of hydrocarbons. Hydrocarbons. So my dear students, what are alcohols? These are hydroxyl derivative. These are hydroxyl derivative of hydrocarbons or general alkane. Just use your alkane is your CnH2n plus 2. तो alkane से एक हाइड्रोजन को सिर्फ यहाँ से हटाकर, alkane से एक हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ से हटाकर एक OH ग्रुप डाल दीजिए, हो गया आपका CnH2n plus 1 OH. और इसे भी हम कह सकते हैं इसी तरह, चलो Cn और ऐसे कह सकते हैं, जिसको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है CnH2n plus 1, इधर एक है CnH2n plus 2 O. This formula also indicating for alcohol. So if a compound exists in this formula, also we can represent with the alcohol format. So my dear students, this is just the introduction of your alcohol. What are alcohols? Alcohols are the organic compound containing the functional group OH. These are the hydroxyl aliphatic alcohol. We are now discussing about the aliphatic alcohol. Then after that we will discuss the aromatic alcohol. Aryl alcohol is your phenol.
but this is now today topic is your alcohol. This video will give the all details about the alcohol, OH. So OH is the functional group. Okay, this is the hydroxyl group. So hydroxyl derivative of hydrocarbons is called your alcohols. The definition you can write. Hydroxyl derivatives of hydrocarbons in which one or more hydrogen atom is eliminated and that plus the OH group is attached. हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन हटाकर वहां पर OH ग्रुप आप डाल दीजिए सिंपली. सो अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. सिंपल. नाउ विल सी द सम मेंबर्स ऑफ अल्कोहल. क्लियर? सो दिस इज द नोट. देन विल स्टार्ट सम हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द अल्कोहल्स and with there some name of the members, important member of alcohol. चलो generally simple alcohol के बारे में हम बात करते हैं. The alcohol whose general formula is stands for CnH2n plus 1 and OH. If the first member N is equal to 1, then put here this is the CH3OH, a compound with its common name Cn common name and its IPAC name. You will see it is in common name. This common name is your methyl alcohol. Methyl alcohol and its IPAC name a carbon name methanol. So IPAC name already we discussed. You can see our video also with the general organic chemistry. Before that concept of basic concept of organic chemistry. So N is equal to 2. This member is C2H5OH. इसको कहते हैं ethyl alcohol. And IPAC name is your ethanol. Then N is equal to 3. This is your C3H7OH. This is your propyl alcohol. And this is called your propanol. When N is equal to 4, this is your C4H9OH. This is your butyl alcohol. Or it is called your butanol. So we are writing like this. So these are the members which can easily write. Okay, so methyl alcohol, methanol, ethyl alcohol, ethanol. Simple we are writing here. If you want to split a molecule with its position, you can also be extend, no problem. So if you want to explain the molecule with a particular C4H9OH structure, if just see here, 4 carbon 1, 2, 3, 4, you can put here OH. 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हो गया, 2 इधर, तो कार्बन का वैलेंसी 4 है. उसके अकॉर्डिंग टू दैट C4 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 9 हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 2 9, OH एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन OH फॉर्म पर. So we can represent the functional group which is attached to carbon atom. This is your alpha carbon. Then next nearer of this carbon we are saying beta. Then it is gamma. Like there eta we can give the name alpha, beta, gamma like this. You know this one. So this is alpha. Okay, this beta position. The functional group containing attached to the carbon is called your alpha carbon. So my dear students, just from this it is clear the name of some molecules. We can open up this molecule by this, or in bond line notation also we can express like this: 1 2 3 4, 1 2 3 4. Bond line notation OH. This molecule 1 2 3 4 OH will be put here. No problem. समझ में आया? So like this we can open up this molecule in bond line notation. So now this is your alcohol. Note कर लिया आप लोग. Now फटाफट चलो next. After this naming alcohol, then the types of alcohol. How alcohols are classified? Now types of alcohol. Types of alcohol. तो बच्चों उसको types of alcohol very important term. Alcohols are basically classified on the basis of attachment of carbon atom on which basis of attachment of hydroxyl group, OH group in which carbon atom. So like this, alcohols are 3 types. Number 1, primary alcohol. Primary alcohol. Number 2, your secondary alcohol. Number 3, your tertiary alcohol. So we can classify 1 degree वाला अल्कोहल, जैसे अल्किल हैलाइड में पढ़े थे हम लोग. इन अल्किल हैलाइड ऑलरेडी डिस्कस्ड प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. सिमिलरली your primary alcohol, if the OH group is attached to that carbon atom which is also contain attached with another carbon atom with nearer of it, this is your primary alcohol. So primary carbon से OH attachment हुआ है.
जिस कंपाउंड में प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, जिस कार्बन ने उसके पास वाला एक नजदीक वाला कार्बन के साथ बॉन्ड हुआ होगा एक ही कार्बन में, दिस इज योर प्राइमरी कार्बन एटम. इफ OH group attached with the primary carbon atom, this is your primary alcohol. So primary alcohol, it will give hydrogen 3 here, CH3, CH2, OH. This is example of a primary alcohol. The name दो कार्बन है, इथानॉल, इथानॉल और इथाइल अल्कोहल. और जनरल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं जनरल फॉर्मूला के साथ, उसके लिए अल्काइल ग्रुप डाल सकते हैं RCH2OH. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल. Similarly, secondary alcohol, if the OH group is attached with the secondary carbon atom, if OH group is attached with the secondary carbon atom, this is secondary carbon atom, if this carbon atom is bonded with the neighboring of two its carbon atoms, if OH group is attached with secondary carbon atom, this is secondary alcohol. If you put here CH3, CHOH, 1, 2, 3. So this is now your propan 2OL, propan 2OL, or we can say also be like this, we can write this is CH3 CHOH, secondary alcohol ka this is also called isopropyl alcohol, isopropyl alcohol. Clear बच्चों? So this is your secondary alcohol, and this is common formula. इसके लिए R, इसके लिए R, we can write like this, RRCHOH, R दो R है, RRCHOH, RRCHOH. This is your secondary alcohol, secondary alcohol. अदरवाइज दिखाई नहीं देता है राइट साइड में, तो हम लिख सकते हैं इधर, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल के लिए RRCHOH. दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल. द जनरल फॉर्मूला स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी अल्कोहल RRCOH. Clear? Now the tertiary alcohol, if the alcohol group is, this is the secondary alcohol RRCHOH, primary alcohol RCH2OH. Clear? ये tertiary alcohol like this, tertiary कार्बन के साथ, tertiary कार्बन क्या होता है, एक कार्बन तीनों साइड कार्बन के साथ ज्वाइंट हुआ है, यदि उस वाला कार्बन के साथ 3 डिग्री वाला अल्कोहल, ओके, इसके साथ OH अटैचमेंट है, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल है. तो इधर हाइड्रोजन डाल दीजिए, इधर हाइड्रोजन डाल दीजिए, इधर हाइड्रोजन डाल दे, हो गया. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल, टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल. दिस इज द कॉमन नेम, टर्शियरी अल्कोहल, टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल, टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल. और कैन से IPSC नेम आसान से लिख सकते हैं 1, 2, 3, 2 मिथाइल प्रोपानॉल, 2 प्रोपानॉल और प्रोपान 2OL, 2 methyl propan 2OL. Clear? So my dear students, alcohols are classified in 3 types, primary, secondary, tertiary alcohol. यदि tertiary alcohol को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बदले अल्काइल ग्रुप डाल सकते हैं RRRCOH. So this is also right, RRRCOH. This means tertiary alcohol is bonded with the 3 alkyl groups. Tertiary alcohol, primary alcohol RCH2OH, secondary alcohol RRCH, tertiary alcohol RRRCOH. So there are 3 types of alcohol we can easily express, primary, secondary, tertiary. Clear? This is a taught butyl alcohol, taught butyl alcohol. So dear students, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, ये रहा आपका प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला RCH2OH. याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चलकर इस रिएक्शन के साथ हम कुछ कर इस फॉर्मूला को याद रखना है. तो सेकेंडरी अल्कोहल RRCHOH, टर्शियरी अल्कोहल RRRCOH. बहुत बढ़िया सा उसका फॉर्मूला है. ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी याद रख ली. चलो नेक्स्ट. Again, if you want to see the alcohol in aromatic case, aromatic alcohol, your phenol, aromatic aliphatic alcohol, your just primary, secondary, tertiary alcohol. If there are 2 OH ग्रुप होगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 ग्रुप OH होगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तो ऐसे अल्कोहल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं. Again, if there is organic compound containing 2 OH, this is your dihydratic alcohol, you can say dihydratic alcohol. समझे? ये 3 का OH होगा, उसको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH होगा. सो लाइक यू कैन मोनोहाइड्रिक, एक OH होगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे हम पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक ही OH है, CH2 CH3 COH. दिस इज योर इथानॉल, इथानॉल एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक OH ग्रुप होगा वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है. जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 OH होगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल है. जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 से ज्यादा होगा, दिस इज योर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल.
ओके, मोनोहाइड्रिक ड्राई, उसका एक भी कॉमन नेम है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? सो दिस इज योर, इसका नाम कैसे आपको आईपीएस नाम में हमने बताया था, इसका नाम आईपीएस नाम क्या हो सकता है, मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का उसका नाम कैसे हो सकता है? तो इसको भी हम इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, केमिकल नाम इथिलीन ग्लाइकॉल, और उसका आईपीएस नेम होता है 1,2-इथेन 1,2-डाईओएल। उसी तरह इसका भी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, उसका एक कॉमन नेम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, इसको डाईहाइड्रिक कहते हैं। ट्राईहाइड्रिक का कॉमन नेम होता है आपका ग्लिसरॉल, इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। उसको हम पढ़ सकते हैं आईपीएस नेम प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओएल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओएल, और इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। तो चलो ये हुआ कुछ अल्कोहल के नाम के साथ ऑलरेडी हमने बात कर रहे थे। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यू नो अल्कोहल्स हाउ दे आर क्लासिफाइड। तो अल्कोहल को बेसिकली कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप, दिस इज मे बी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप विद द पर्टिकुलर कार्बन आटम, किस कार्बन के ऊपर OH लगा है उसको देखकर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बताया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ अल्कोहल। नाउ विल सी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को कैसे बनाएंगे। उससे पहले थोड़े अल्कोहल के बारे में और कुछ बात जानकारी ले ले, कुछ जैसे कि अल्कोहल का आइसोमरिज्म के साथ बात करेंगे। आइसोमरिज्म ऑलरेडी हमने एक वीडियो आपको छोड़े थे, वीडियो ऑलरेडी हमने सेंड किए थे। आइसोमरिज्म के साथ आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल ग्रुप, ऑल थिंग्स वी डिस्कस्ड। आइसोमरिज्म, तो अल्कोहल मॉलिक्यूल कौन कौन सा का आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं। वैसे अल्कोहल दिखा सकता है चेन आइसोमरिज्म, तो हर कंपाउंड जिसे दिखाने के काबिल है जिसके पास मिनिमम 4 कार्बन और 4 से ज़्यादा कार्बन होता है वो चेन आइसोमरिज्म दिखा सकता है, उसे भी अल्कोहल दिखा सकता है चेन आइसोमर्स। जैसे चेन आइसोमर सपोज 4 कार्बन तो मिनिमम शुरू होता है। सपोज एक फॉर्मूला है, हम जैसे करते हैं C4H10O CnH2n+2O, इसको कोई चेन आइसोमर जो 1, 2, 3, 4 इसके OH है, समझ में, N ब्यूटानल पूरा स्ट्रेट 4 कार्बन है, इधर OH लगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन को ऊपर लेकर ऐसे OH डाल सकते हैं, इसको आइसोब्यूटानल हम कह सकते हैं। आइसोब्यूटानल आइसो ग्रुप है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मगर इधर कार्बन चेन में थोड़ा चेंज ला लिया। कार्बन चेन क्या है, इधर स्ट्रेट है, इधर कार्बन चेन ब्रांच है, तो जिसको हम चेन आइसोमर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चेन आइसोमर। समझ में आ रहे बच्चे लोग? तो चेन अल्कोहल भी चेन आइसोमरिज्म दिखा सकता है। वैसे इसके लिए कुछ क्वेश्चन इतना ही नहीं गिराता है, हमको जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल ये जो उसका फंक्शनल आइसोमर ग्रुप के बारे में बताता है। फंक्शनल आइसोमरिज्म दिखा सकता है, फंक्शनल आइसोमर्स। तो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होगा। जिस फॉर्मूला में हम अल्कोहल को एक्सप्रेस कर सकते हैं उस फॉर्मूला में ईथर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, व्हिच इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ अल्कोहल? ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। तो जिस फॉर्मूला में हम अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस फॉर्मूला में हम ईथर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रख लो बेटा, ईथर। फर्स्ट एग्जाम्पल होता है C2H6O, उस तो दोनों के लिए फॉर्मूला बराबर है। अल्कोहल ईथर के लिए CnH2n+2O, अल्कोहल और ईथर दोनों के लिए फॉर्मूला बराबर है CnH2n+2O। इस फॉर्मूला में हम अल्कोहल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में ईथर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड, और नहीं तो मेरा वीडियो देख सकते हो आप, आइसोमरिज्म वीडियो। तो ईथर एंड अल्कोहल दोनों क्या कर सकते हैं? फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। तो इधर 2 डाल दिया, C2H6O, इसको कोई अल्कोहल में एक्सप्रेस कर सकता है। 2 कार्बन है, 1, 2, एक OH लगा दिया कोई बंदा, तो हो गया 2, 2, 4, 3 हो गया। दिस इज योर इथानॉल, CH3 CH2OH, दिस इज योर इथानॉल। अभी इसको ईथर में एक्सप्रेस करना है मुझे, ईथर में एक्सप्रेस कीजिए। ईथर में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? देखो अभी 1, 2 CH3O CH3, डाइमिथाइल ईथर, इसको पढ़ते हैं डाइमिथाइल ईथर और मिथोक्सीमीथेन, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, नहीं तो मिथोक्सीमीथेन। तो चलो एक ही फार्मूला,
इसको हम अल्कोहल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ईथर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर ही होता है। जिस फॉर्मूला में हम अल्कोहल को एक्सप्रेस कर सकते हैं उस फॉर्मूला में हम ईथर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आएगा बच्चे लोग? तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ईथर ही होता है। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी दिखा सकते हैं अल्कोहल जिसके पास कायरल कार्बन होगा, उसके बारे में हम स्टेरियोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी बताया है, स्टेरियोकेमिस्ट्री में देख सकते हो। अल्कोहल भी दिखा सकता है आपके लिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सपोज आपको एग्जांपल देता हूं, ब्यूटन 2OL। ब्यूटन 2OL का स्ट्रक्चर बना दीजिए, ब्यूटन 2OL। अब इसका स्ट्रक्चर बना दे, 1 2 3 4 बना दिया, 2 कार्बन में OH है, हो गया। अभी इधर डालो CH3 H CH2 CH3। तो कैन इट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म व्हिच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट, डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म। ऑलरेडी इसके बारे में हमने आपको क्लास में बताया था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ब्यूटन 2OL, यस, इफ यू टू रोटेट मिरर का आप रख लीजिए, क्या होता है CH3H, ये हो गया आपका C2H5। फर्स्ट इट इज कायरल कार्बन आटम, यस इट इज कायरल कार्बन आटम, एक ही कायरल कार्बन आटम उसके अंदर है। तो क्या होगा, मिरर इमेज आप बना सकते हो, मिरर इमेज बना सकते हो कि कैसे हो जाएगा, COH इधर आ गया उसका C2H5 H CH3। दिस इज योर डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड लेवो फॉर्म। पेयर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो इज कॉल्ड एनांशियोमर्स। These are optically active compound because the carbon is chiral carbon atom, asymmetric carbon atom। ओके, इसके चारों तरफ जो ग्रुप है अलग अलग है। जस्ट ये लाइट के ऊपर रखने से, इस लाइट उसके ऊपर गिराने से लाइट को राइट को रोटेट करेगा, नहीं तो लेफ्ट को रोटेट करेगा। कोई इसको डी ले जाए, इसको एल ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म, क्लियर। सो ब्यूटन 2OL कैन शो द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सो अल्कोहल ऑल्सो शो द ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल दैट अल्कोहल हमने बता रहे थे, अल्कोहल के थोड़ा इंट्रोडक्शन अब तक था। जो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, अल्कोहल का कितना तरह का अल्कोहल होता है और अल्कोहल कौन कौन सा आइसोमरिज्म आराम से दिखा सकता है। अभी चलो हम शुरू करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के तरीका। अब ऐसे अल्कोहल बनाकर कोई घर में बना सकता है क्या? हाँ, बना सकता है। अल्कोहल OH वाला क्या है, हमारे खाने में भी वो अल्कोहल है। ओके, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, मगर इसको हम अलग अलग, हम लेबोरेटरी के काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, अलग अलग मेथड है। तुम्हारा बुक के अनुसार नंबर कितना मेथड्स, नंबर 1 मेथड है, हम बनाएंगे फ्रॉम अल्काइल हालाइड्स। अल्काइल हालाइड से हम कैसे बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार गिरता है, फ्रॉम अल्किन। अल्किल से बनाने के लिए अलग अलग भी मेथड है, हम इसमें से अल्किन से 3 मेथड है, मगर तुम्हारा बुक में 2 है, हम बताएंगे आपको। एक होता है अल्किन से बनाना, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, एक है हाइड्रेशन ऑफ अल्किन बनाएंगे, इस मेथड है। और एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ वो बनाएंगे मेथड। ओके, एक हाइड्रेशन ऑफ अल्किन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन, जो सिलेबस में नहीं है, सिर्फ दोनों मेथड में हम बताएंगे। एक है हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, ओके, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड ऑफ अल्किन। नंबर 3 हम बनाएंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मेथड है फ्रॉम, हम बनाएंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में गिरता है बार बार, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जो आपका अल्किल मैग्नीशियम हालाइड होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें से भी अल्कोहल बना सकते हैं। और चौथा वाला जो मेथड होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करना है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो अल्कोहल बनाने के लिए आपका बुक में 4 मेथड दिया है। पहला मेथड है फ्रॉम अल्काइल हालाइड्स,
दूसरा वाला मेथड है फ्रॉम अल्किन। अल्किन का हम दो मेथड यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में दो मेथड दिया है। एक मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, हम कैसे हाइड्रेशन करेंगे, वाटर डालकर निकालेंगे, उसका मैकेनिज्म हम दिखाएंगे। और दूसरा वाला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, डाइबोरेन कंपाउंड डाल के कैसे बना सकते हैं। तीसरा वाला मेथड है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसा बना सकते हैं। और चौथा वाला मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट सा मेथड भी है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड जिसका C डबल बॉन्ड O होता है उसको हम रिडक्शन करेंगे। जैसे अल्डिहाइड हो सकता है, अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे। अल्डिहाइड कौन कौन सा कंपाउंड जा सकता है, कीटोन, एसिड और कुछ एसिड डेरिवेटिव्स भी हम लगेंगे, एसिड डेरिवेटिव्स। ये सब सारे कंपाउंड का हम रिडक्शन करेंगे तो बन जाएगा अल्कोहल। ये सबका रिडक्शन करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विथ सम रिड्यूसिंग एजेंट। सो नाउ विल स्टार्ट वन बाय वन। तो चलो पहले शुरू करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स हम कैसे बन करता है, तो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इन दिस सेक्शन विल डिस्कस दिस वन ओनली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट द फर्स्ट मेथड, हाइड्रेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड्स हम कैसे बना सकते हैं, ऑलरेडी हमने इसको हलोअल्केन हलोआरेंस चैप्टर्स में पढ़ाए थे, हलोअल्केन चैप्टर में। तो दिस इज योर अल्किल हैलाइड RX। सिंपली दिस इज जनरल रिएक्शन GR। दिस इज योर अल्काइल हैलाइड। When alkyl halide just react with the aqueous solution of a potassium hydroxide or any alkali aqueous solution of a potassium hydroxide or sodium hydroxide you can put. So OH K plus OH minus, basically OH minus will goes to this halogen and a nucleophilic substitution occurs. This is your simply alcohol is formed plus potassium halide. इसके मैकेनिज्म आपको तो मालूम होगा, मैकेनिज्म हमने बताया था आपको। पहला वाला वीडियो आप YouTube में जाकर सर्च करके देख सकते हो, श्रीनिवास केमिस्ट्री। ओके, वहां पर हमने ऑलरेडी बताया था केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2, इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली अल्किल हैलाइड जब एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल बनता है। अभी चलो अल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज CH3 या Br मिथाइल ब्रोमाइड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल सा रिएक्शन है, K प्लस OH माइनस ब्रोमीन के प्लस सब्स्टिट्यूट होगा, इधर चला आएगा तो हो गया आपका CH3OH मिथानॉल प्लस KBr। दिस इज अ मिथानॉल प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। ये तो सिंपल सा रिएक्शन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी चलो अल्किल हैलाइड्स और है कि फ्रॉम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, फ्रॉम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डाल के भी हम बना सकते हैं। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता है क्या, अल्किल हैलाइड से मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड आप डालोगे तो भी बन सकता है अल्कोहल। चलो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के बारे में हम बताते हैं। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, और सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इसके साथ वाटर डाल दीजिए, मॉइस्ट है तो ये बन जाएगा आपके लिए सिल्वर ऑक्साइड AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड के यदि अल्किल हैलाइड में आप रिएक्शन करोगे, RX अल्किल हैलाइड प्लस सिल्वर हाइड्रोक्साइड, दिस इज मॉइस्ट, तो ये भी बन जाएगा Ag प्लस OH माइनस सब्स्टिट्यूट होगा, बन जाएगा ROH प्लस सिल्वर हैलाइड AgX। तो ये भी अल्कोहल बना सकते हैं। तो दिस इज अ सिंपल मेथड, हम अल्कोहल बना सकते हैं कहाँ से, अल्किल हैलाइड से। दिस इज वन मेथड। सो व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, alcohol is formed. Otherwise, when alkyl moist halide also react with the moist silver oxide, alcohol is formed. This is the first method. चलो हम second method को start करेंगे। This is the first method. How can you prepare the alcohol from your alkyl halide? चलो बहुत interesting method अभी आने वाला है। Second method here from alkene, very important method. Alkene. Methods of preparation of alcohol from alkene. From alkene, अल्किन से कैसे हम बना सकते हैं। फ्रॉम अल्किन दिखाई नहीं देता है, नीचे थोड़ा, फ्रॉम अल्किन सिंपल मेथड। अल्किन से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, चलो अल्किन से अल्कोहल बनाना बहुत आसान है। तो इसको हाइड्रेशन करना है, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। पर चलो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है सर, पानी डालना है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रेशन ऑफ अल्किन को हाइड्रेशन करना है। तो ये कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है अभी, ओके, तो इसको हाइड्रेशन करना है, वाटर भी डालना है,
यदि इसे रिएक्शन करोगे, सो अल्किन में पानी डाल दोगे रिएक्शन नहीं होगा, अल्किन में पानी डाल दोगे रिएक्शन नहीं होगा, दिस विल नॉट हैपन, दैट रिएक्शन नहीं हो सकता है। सर क्यों नहीं हो सकता है? देखो भाई वाटर क्या है, वाटर के पास इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन इज कंटेनिंग मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल है, इधर पाई इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज वेरी वीक बॉन्ड, ओके, इट इज ऑल्सो इजिली डिसोसिएटेड, तो मोर पाई इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो पाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिपल्सन होने की चांस है। तो रिएक्शन होता है कैसे? दिस इज वेरी नॉट सिंपल, ऐसे रिएक्शन कर दोगे तो गलत होगा। बट हियर सम रिएजेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज योर एसिडिक, सो आई विल पुट हियर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड मीडियम में रिएक्शन होगा, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोन अटैक करेगा H+, उसके बाद रिएक्शन होगा। सो वी कैन रिएक्ट, दिस रिएक्शन विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ H+, acidic medium, then double bond will break and will convert it to a single bond and OH will form finally. Okay, we'll see this reaction details. A simple example first we will give in CH2 double bond CH2, पहले क्या symmetrical alkene में लेते हैं, water H2O in presence of acidic medium, तो मैकेनिज्म पूछा होगा तो हम लिखेंगे, बेसिकली स्टेट बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं पूछता है, मगर आपको एनसीईआरटी बोर्ड में मैकेनिज्म पूछता रहता है। तो अल्किन में वाटर रिएक्शन करो तो क्या निकलता है, इसका नाम है इथिन, इथिन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इथिन कह सकते हैं, नहीं तो कॉमन नेम है इथिलीन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इथिन मॉलिक्यूल में वाटर डालने से वाटर हो गया आपका H+OH-, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमेट्रिकल में बताया कोई भी प्रॉब्लम नहीं, H+ एक तरफ को चलेगा और OH- एक तरफ को चलेगा, तो इधर हो गया रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, हो गया इथेनॉल, सिंपल एडिशन रिएक्शन। बट आई एम टेलिंग बिफोर सम टाइम, इफ H+ विल बी नॉट देयर, द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, एसिड मस्ट बी देयर, एसिडिक मीडियम इज मस्ट बी देयर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो H+ काम कौन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ H+ हियर, I will discuss in the mechanism now after this one. So this is simple. So आपको याद रखने के लिए ये सबसे सिंपल है। चलो H+ एक तरफ चला गया और एक OH एक तरफ चला गया, डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड हो गया, समझ में गया? दिस इज योर इथिन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल। So alkene when added with water, it is converted to alcohol. This is simple reaction, simple method. But in case of unsymmetrical alkene, CH3, CH double bond CH2, this is your unsymmetrical alkene, propene, 1 2 3, this is unsymmetrical alkene. If in propene case, if you will take the addition of water in same acidic medium, similarly H+ and OH-, in unsymmetrical alkene it follows your Markovnikov's rule. Which rule? Markovnikov's rule. What is the Markovnikov's rule is saying? The negative part of the addendum get attached to that carbon atom which contain your lesser number of hydrogen atom. So वाटर को यहाँ पर ब्रेक करने से जो H+ एंड OH- निकलता था, तो यहाँ पर OH- क्या ऐसे रिएक्शन नहीं है, ये बताओगे तो गलत है, क्योंकि ये वाला ऐसे रिएक्शन नहीं हो सकता है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर बताया, इसका मैकेनिज्म बताएंगे, फिर सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन को लिखने के लिए हम बताते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म में पता चल जाएगा। तो OH- इज डायरेक्टली get attached to that carbon atom which contain lesser number of hydrogen atom. इस कार्बन में एक ही हाइड्रोजन, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो नेगेटिव आएगा भाई, इधर हाइड्रोजन के साथ लगेगा और H+ आकर इधर लगेगा, तो आंसर बन जाएगा CH3 CHOH CH3, दिस इज योर प्रोपानॉल, 2 प्रोपानॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मीथ ईथ प्रोपिन में वाटर डालोगे तो प्रोपानॉल बन जाएगा, प्रोपिन में वाटर डालोगे तो प्रोपानॉल बन जाएगा, समझ में आया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अल्किन इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय एडिंग वाटर इन एसिडिक मीडियम, समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लीजिए और उसका मैकेनिज्म बताते हैं। रिएक्शन एक्चुअली वैसे नहीं होता, रिएक्शन कैसे होते हैं आपको दिखाते हैं। चलो उसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म इसका क्या होता है। तो अल्किन कैन बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल, तो इससे क्या होगा, पहले जो वाटर है फर्स्ट स्टेप, वाटर में क्या होगा, H+ ऐड होगा, इसे एक ही स्टेप में बना सकते हैं, 2 मैकेनिज्म 2 तरह का कोई भी कर सकते हैं। वाटर में क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, H+ कहाँ से आता है, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये H+ दे देगा एसिडिक मीडियम। तो वाटर में पहले H+ आप ऐड कर दीजिए, ये आपके लिए हो गया हाइड्रोनियम आयन H3O+, हाइड्रोनियम आयन, क्लियर।
अभी ये चलो ए मॉलिक्यूल जाके अल्किन के साथ अटैच करेगा मैकेनिज्म में, दिस इज मैकेनिज्म। अल्किन सपोज है CH2CH डबल बॉन्ड, एक अनसिमेट्रिकल में करते हैं, सिमेट्रिकल में तो नहीं पूछेगा, अनसिमेट्रिकल बेसिकली हम करेंगे। सो हाय डियर स्टूडेंट्स, now we'll see the preparation of alcohol from hydration of alkene, its mechanism. So ये बहुत सा important mechanism है for your 12th standard board for CBSE students. So mechanism generally acting in your CBSE board. Hydration of alkene, सिंपल सा हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करना है हमें। किसके साथ वाटर को ऐड करना है? अल्किन में। चलो एक अनसिमेट्रिकल अल्किन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। दिस मॉलिक्यूल कॉल्ड योर प्रोपेन, इट इज कंप्लीटली अनसिमेट्रिकल बिकॉज इन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अलग अलग नंबर का हाइड्रोजन है, इसे CH, ओके। सो इधर एक हाइड्रोजन, इधर दो रहे, दिस अनसिमेट्रिकल अल्किन। सिमेट्रिकल अल्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं, H+ और OH- विल अटैक। हाउ द रिएक्शन हैपेंड, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सो फर्स्ट विल द अटैक ऑफ प्रोटोन H+ कहां से आता है? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक कर लीजिए, H+ HSO4-। दिस प्रोटोन विल अटैक ऑन व्हिच प्लेस इट विल अटैक इफ द इलेक्ट्रॉन विल शिफ्टिंग हियर एंड द रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेप 1 द रिएक्शन इंटरमीडिएट विल फॉर्म। सो दिस इलेक्ट्रॉन आइदर मे बी शिफ्ट हियर और इट विल मे बी शिफ्ट हियर, इन व्हिच डायरेक्शन द पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट बाय द लुकिंग अप, दोनों पॉसिबल है, इधर भी शिफ्ट कर सकता है, इधर भी शिफ्ट कर लेता है। यदि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है तो क्या होगा? यदि इलेक्ट्रॉन इस तरफ को शिफ्ट करेगा तो ऐसे होगा CH3CH+ इधर आके H+ अटैक करेगा, समझ में आ गया? तो H+ विल अटैक ऑन दैट डायरेक्शन वेयर द इलेक्ट्रॉन, ओके, दिस H+ विल अटैक ऑन द माइनस पोजीशन। सो फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ प्रोटोनेशन और अटैक ऑफ प्रोटोन अटैक करेगा, नहीं तो प्रोटोनेशन हम इसको कह सकते हैं। और एसिड के प्रेजेंस में सब रिएक्शन होगा, तो H+ से लगा अटैक करेगा इधर, जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन होता है, तो इधर आके हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो हाइड्रोजन जाकर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आपके लिए CH3, समझ में आ गया? तो ये होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन, इसको क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। एक ही चांस, यदि इस तरफ कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो क्या हो सकता है? इधर यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो ये हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है, CH3CH ये होगा, इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से CH2+, ओके, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर होगा तो ये माइनस होगा, इधर अटैक करेगा हाइड्रोजन, तो ये हो सकता है एक चांस है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ए होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो दोनों कार्बोकैटायन के अंदर कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? तो द सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज द राइट। So secondary carbocation is more stable. So this is the right position for shifting of a electron. So my dear students, what is this mechanism of hydration of alkene? What happening first? So dear students, there is a pi bond. Pi bond is very weak bond. It will shift. So it will shift in that direction. Which direction you will prefer? It will shift it in that direction. When the electron will shift in that direction, this is become CH2-. समझ में आ गया? अभी प्रोटोन आके अटैक करेगा। प्रोटोन कहां से आता है? इस एसिडिक मीडियम से, सल्फ्यूरिक एसिड में H+ एंड HSO4-। दिस इज वीक बेस आफ्टर कंजुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, HSO4- है, और H+ आके अटैक करेगा। किधर H+ अटैक करेगा? तो H+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो H+ से कंप्लीटली कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं, वो अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन उसको दिखाई देगा नेगेटिव चार्ज। तो H+ विल बी अटैक इन द CH2 वेयर द इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट। सो पहले स्टेप में क्या हो सकता है? तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो इधर शिफ्ट होने से इधर CH3CH+ CH2- और H+ जाके इधर अटैक करेगा जहां पर माइनस होगा। तो यहां पर हम कहते हैं एक ही स्टेप में बना देते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? कार्बोकैटायन एज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, and secondary carbocation is more stable, formation of a reaction intermediate. Is there any doubt? तो पहले स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में क्या होगा? तो रिएक्शन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, रिएक्शन कार्बोकैटायन में अभी वाटर उसके पास है, हाइड्रेशन होगा, तो हाइड्रेशन होगा तो ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट
अभी वाटर अटैक करेगा, तो वाटर में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर के पास जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हमें आके अटैक करेगा किसके साथ, वो कार्बोकैटायन के साथ अटैक कर सकता है। तो चलो ये वाटर ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज किधर है, इधर आके अटैक करेगा, तो अटैक करने से क्या हो जाएगा, CH3 आपका H2O अटैक करके प्लस हो गया, H2O प्लस, इसे पॉजिटिव साइन में लिख सकते हैं, H2 आके इधर अटैक कर दिया। समझ में आ गया आप लोग को, तो CH3 H2O प्लस आ गया। अभी उसमें क्या होगा, स्टेप 3 में अभी जो H प्लस इधर से H2 पहले स्टेप में क्या था, वो H प्लस फिर डीप्रोटोनेटेड करेगा, CH3 CHOH2 जो प्लस था वो H प्लस फिर लॉस करेगा इस तरफ को, तो यहाँ से जो OH2 प्लस है इधर आप ऐसे लिख सकते हो OHH, ओके पॉजिटिव था, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वो फिर क्या करके इस इलेक्ट्रॉन H प्लस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से निकल गया H प्लस माइनस H प्लस, और ऐसे राइट साइड में लिख सकते, तो ये बन गया CH3, पॉजिटिव चार्ज था, अभी इलेक्ट्रॉन आ गया तो चार्ज खत्म हो गया, CH3 CHOH CH3, समझ में आ गया। तो ऐसे अल्कोहल बनता है, और उसके साथ क्या रिलीज होता है, हम इस साइड में भी लिख सकते हैं, इसके साथ H प्लस रिलीज होगा, तो इधर H प्लस आएगा, डीप्रोटोनेशन। तो समझ में आ गया कहानी पूरा एकदम। तो मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म डिटेल्स ऑफ द रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन कैसे होता है, तो अनसिमेट्रिकल अल्किन लेते हैं, उसका नाम है प्रोपिन। तो फास्ट में पेस्ट स्टेप 1 होता है, रेट स्लो स्टेप, प्रैक्टिकल दिस इज द स्लो स्टेप, दिस इज RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS slow step, this is rate determining step, okay. So in this step first the shifting of a pi electron on the towards this carbon and formation of a reaction intermediate carbocation। तो पहले स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहां पर नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पर जो एसिड का प्रोटॉन अटैक होगा, दिस इज प्रोटोनेशन हम कह सकते हैं, अटैक ऑफ प्रोटॉन। तो H प्लस कहाँ से मिलता है बच्चों लोग, H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के मीडियम में जो रिएक्शन होता है वो H प्लस आके इधर अटैक करेगा, समझ में आ गया। तो कहानी में CH3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया इस तरफ को, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, CH3 CH प्लस CH3 इधर हाइड्रोजन अटैक करेगा, दिस इज योर कंप्लीट कार्बोकैटायन। अभी कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर अटैक करेगा, क्यों, वाटर एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, समझ में, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका इलेक्ट्रॉन आके इधर कार्बन जहां पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक किया, तो अटैक करने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऑक्सीजन अटैक किया तो हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब स्टेप 3 में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन करेगा, क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन। तो जो हाइड्रोजन लाया था पहले स्टेप में वो हाइड्रोजन को फिर रिलीज कर देगा, क्योंकि HSO4 तो माइनस बताएगा भाई मेरा सल्फ्यूरिक एसिड मुझे चाहिए, समझ में आया। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है जैसे प्रोटॉन ने अटैक किया था लास्ट टाइम में, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, वो प्रोटॉन फ्री छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन फिर वही H प्लस और एक बार कंप्लीटली स्टार्ट करेगा, फिर वही ऐसे साइक्लिक प्रोसेस है फिर शुरू करेगा यहाँ से, समझ में आया कहानी। तो जैसे H प्लस पहले स्टेप में अटैक किया था, क्योंकि रिएक्शन पहले से कैटालिस्ट जो होते हैं रिएक्शन बाद में भी वही मिलता है, फिर H प्लस जाके ऐसे HSO4 तो माइनस के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बन सकता है। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ योर हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, क्लियर। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किन। सो नोट कर लो इसको, समझ में आ गया कहानी पूरा कि कुछ डाउट है, तो डाउट होने के लिए आप पूछ सकते हो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस मैकेनिज्म बेसिकली एक्टिंग इन CBSE बोर्ड क्वेश्चन, वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन, राइट द हाइड्रेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। तो पहले हमने अल्किन ले लिया और उसमें क्या हुआ, प्रोटॉन अटैक किया, प्रोटॉन और H प्लस, H प्लस कहाँ से आता है, जो एसिड होते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में लेते हैं H प्लस आता है, तो यहाँ पर H प्लस अटैक करेगा, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होने से रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। स्टेप 2 में वो कार्बोकैटायन के पास अटैक करेगा, वाटर जो है हाइड्रेशन हम करते थे वो वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रीच होने के कारण वो न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक करेगा यहाँ पर, तो हो गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट स्टेप में तो CH3 CHOH2 प्लस जो है वो हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन देके वो क्या करेगा, चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन होने से पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, वो हो गया OH, और H प्लस फिर निकल आया, H प्लस रिलीज होता है, तो H प्लस होता है, फिर प्रोटॉन H प्लस फिर प्रोटॉन क्या करेगा, ऐसे
हजार हजार मॉलिक्यूल होगा अल्किन, उसके साथ फिर और एक बार रिएक्शन ऐसे स्टार्ट से शुरू करेगा, वो H+ अटैक करेगा, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। हाइड्रेशन ऑफ अल्किन आप नोट कर सकते हो, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। सो मिटा दे इसको। नाउ we'll discuss another method, hydroboration oxidation of alkene. Another method, hydroboration oxidation of alkene. Diboron compound, you know boron hydride compounds or diboron compounds. So just see, नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 3 हम कह सकते हैं उसको हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन HBO ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन। हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्किन? योर डाइबोरेन कंपाउंड हमने 11th स्टैंडर्ड में बोरॉन फैमिली में पढ़ा था। व्हेन अल्किन लाइक योर अनसिमेट्रिकल अल्किन, इसे अनसिमेट्रिकल अल्किन सपोज लेते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस मॉलिक्यूल कॉल्ड योर प्रोपीन, प्रोपीन, दिस मॉलिक्यूल कॉल्ड योर प्रोपीन। तो दिस इज योर कंप्लीटली प्रोपीन। व्हेन प्रोपीन इज रिएक्ट्स विथ बोरेन डाइबोरेन हाफ B2H6 ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप भी लिख सकते हो उसको BH3 भी लिख सकते हो, BH3। सो व्हेन दिस रिएक्शन विल ऑकर, व्हाट हैपनिंग, दिस इज योर BH3 H एंड BH2 ब्रेक कर दीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप्स, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन इज कंप्लीटली एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है। तो यहाँ पर क्या होगा, H को अगर यहाँ लगना है और BH2 पार्ट इधर चलना है, तो इसे रिएक्शन होने से क्या होगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड BH2, दिस इज अल्काइल बोरेन। सो दिस इज योर प्रोपीन एंड दिस इज योर प्रोपाइल बोरेन, प्रोपाइल बोरेन। अगेन if another alkene will be added, CH3 CH double bond CH2, another propene will be added, again this hydrogen will be released, and here H and BH2, this is dialkyl boron, CH3 CH2 CH2 whole 2 BH, clear? This is your propyl boron, this is dipropyl boron whole 2, dipropyl boron, boron. Again if another alkene will be added, CH3 CH double bond CH2 propene, another BH and hydrogen will be like this react here and boron will be here, the boron will be CH3 CH2 CH2 and this is BH B, 3 मॉलिक्यूल हो गया, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल boron. And finally, if this tripropyl boron is treated with hydrogen peroxide, 3 molecules of hydrogen peroxide in presence of alkali medium sodium hydroxide, then the product will form, तीनों OH यहाँ पर लगेगा, and the product will be like CH3 CH2 CH2 whole 3 OH. This is called your propanol, 3 मॉलिक्यूल प्रोपानॉल निकला, उसके साथ बाई प्रोडक्ट आपका H3BO3 बोरिक एसिड निकलता है। तो सिंपल ए रिएक्शन है, ओके। So this is called your propene, this molecule called your propene. When alkene is react with boron, this is your diboron compound, so boron, diboron से निकलता है boron. When react with boron hydride, this react with boron hydride BH3, तो H plus इधर चलता है हाई कार्बन के पास, according to your anti-Markovnikov's rule will follow here. This mechanism is also there, but mechanism not acting in your exam. So H plus and BH2 minus boron non-metal, so it will form you H plus will goes to that carbon atom, it is anti-Markovnikov's rule follow करता है, तो BH2 इधर CH3 CH2 and BH2, again actually boron hydride BH3, boron hydride diboron compound का, so boron hydride this also 11th standard हमने आपको पढ़ाया था। तो boron when BH3 react like this,
तो H प्लस इधर एक आता है, BH माइनस टू इधर आता है, फर्स्ट CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया, दिस इज प्रोपाइल बोरेन। अगर अगेन अल्किन मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो इधर से बोरेन से हाइड्रोजन से फिर निकल जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 दोनों मॉलिक्यूल हो गया डाई प्रोपाइल बोरेन, और एक हो गया ट्राई प्रोपाइल बोरेन, और इसके साथ फाइनली हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर डालने NaOH डालने से प्रोपानॉल निकलेगा, उसके साथ बोरिक एसिड निकलेगा H3BO3 आपका बोरिक एसिड। सो इन दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर द अल्कोहल फ्रॉम alkene by adding the diborane, alkene the diborane as a compound, the borane compound. So dear student, this is the reaction. In this method also we can prepare the alcohol from diborane, alcohol from your diborane. This method is called hydroboration oxidation method. Another method, method number 4, how can you prepare again from Grignard's reagent, very important method. How can you prepare alcohol from Grignard's reagent? Method number 4, method number 4, another method, method number 4 is your from Grignard's reagent, from Grignard's reagent. तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, काउंसिल में और CBSE बोर्ड में भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन ऑल्सो बी बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाउ कैन यू प्रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल वी कैन मैन्युफैक्चर, और वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन प्रिपेयर हाउ ऑल टाइप्स ऑफ, इज अ वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम में आता रहता है बार बार. बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. सो दिस इज द मेथड नंबर 4. हम 3 में लिखते थे क्योंकि 2 नंबर वाला मेथड में अल्किन से 2 मेथड था, एक है आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, दूसरा वाला है आपका फ्रॉम क्या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन. अभी हम पढ़ते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. योर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पॉपुलरली अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड इज पॉपुलरली नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड, दिस इज पॉपुलरली नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से हम कैसे बना सकते हैं अल्कोहल, और तीनों अल्कोहल बनाना है आपको एग्जाम में पूछेगा. सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल हम पहले कैसे बनाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, और उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल. प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल वी कैन प्रिपेयर. तो प्राइमरी अल्कोहल हमको बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, टर्शियरी अल्कोहल बनाना है. कहाँ से बनाना है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से. चलो शुरू करते हैं, पहले प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. योर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट योर फॉर्माल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, दिस फॉर्माल्डिहाइड, पहले हम प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं. फॉर्माल्डिहाइड when reacts with the Grignard reagent RMgX, formaldehyde, this molecule is called your formaldehyde or methanol, aldehyde का पहला मेंबर. formaldehyde HC double bond OH Grignard reagent. As carbon and oxygen there is a electronegativity difference more, oxygen is more electronegative than carbon, so this is a negative charge and carbon will produce positive charge. Here in alkyl magnesium halide, magnesium is metal being, it is positive charge and alkyl group become negative charge. So dear students, now after this reaction what will happen, as there is a double bond it will undergo the nucleophilic addition reaction. So addition reaction होने से क्या होगा, इसका पॉजिटिव जाके इस नेगेटिव के साथ अटैचमेंट होगा और इसका नेगेटिव आके इस पॉजिटिव के साथ अटैचमेंट होगा, सिंपल सा. सो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, इसका नेगेटिव जाके इस पॉजिटिव के साथ और इसका पॉजिटिव जाकर इस नेगेटिव के साथ. तो रिएक्शन में आ गया HC, अब डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा OMgX, और ये हो गया आपका H और ये हो गया आपका R. समझ में आ गया. So alkyl group get attached to the carbon which contain more positive charge and this part will attach to the oxygen which containing the negative charge. After this addition, then again we will do the hydrolysis, acidic hydrolysis in acidic medium. ओके, सो हाइड्रोलिसिस हम करेंगे. हाइड्रोलिसिस करने से क्या होता है, ये आपका आ गया RCHHOH, दिस विल प्रोड्यूस RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल विथ बाई प्रोडक्ट इज योर MgOHX. क्लियर. तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल मिल गया और ये हो गया बाई प्रोडक्ट. सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर द प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. तो दिस इज योर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. तो सिंपल सा रिएक्शन है. पहले हमको फॉर्माल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना है
व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ फॉर्माल्डिहाइड इट इज फॉर्म एन एडिशनल प्रोडक्ट, इसका कोई नाम नहीं होता, इसका एडिशनल प्रोडक्ट लिख सकते हो, एडिशनल प्रोडक्ट. In further step, this additional product under hydrolysis in acidic medium, it will give you primary alcohol RCH2OH, RCH2O इधर एक H, बाकी बाई प्रोडक्ट हो गया आपका MgOH. फॉर एग्जाम्पल हम डालते हैं, लेट फॉर्माल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक अल्काइल के बदले में CH3 डाल दिया मिथाइल, और X के बदले सपोज आयोडीन डाल दिया, किंतु ब्रोमीन डाल सकते हो, आयोडीन डाल सकते हो. सिमिलरली द रिएक्शन विल हैपन कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो आके एडिशन होगा जैसे ऊपर किए थे वैसे. HCO के पास आएगा आपका MgI पॉजिटिव पार्ट, और C के पास आएगा आपका CH3. अभी उसके नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, उसमें सिर्फ वाटर डाल देना है. हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, तो ये RCH2OH के बदले CH3CH2O और इसका एक H, CH3CH2OH, CH3CH2 इथानॉल प्लस MgOHI, इथानॉल बन गया. तो ये हो गया. तो फॉर्माल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एन एडिशनल प्रोडक्ट, दिस इज द इथानॉल. सो दिस इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो my dear students, when formaldehyde react with any grignard reagent to form an additional product which on further hydrolysis form your primary alcohol. नोट कर लो. नेक्स्ट, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल इन दिस मेथड. तो फॉर्माल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितना सारा अल्डिहाइड है, एनी अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल हम बना सकते हैं कैसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज द मेथड. So when secondary alcohol बनाएंगे कैसे, if any aldehyde, this compound aldehyde formula RC double bond OH, any aldehyde except formaldehyde, alkyl containing your aldehyde react with Grignard reagent RMgX. So this is aldehyde and this is your Grignard's reagent. When the aldehyde react with Grignard reagent, what happens? Similarly, carbon containing some positive charge, ऑक्सीजन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज. नहीं तो इधर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, इधर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, इधर से कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा. समझ में? तो इधर से मैग्नीशियम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और अल्काइल इज नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से अटैक करेगा मैग्नीशियम वाला पॉजिटिव इधर अटैक करेगा और अल्काइल ग्रुप जाके इधर अटैक करेगा. समझ में? तो क्या होगा रिएक्शन, RCO के पास चलेगा MgX और H, ये हो गया R. इज देयर एनी डाउट? So simple students, when aldehyde react with the Grignard reagent, it undergoes the nucleophilic addition reaction. Then alkyl group goes to that carbon which contain here which charge positive, and magnesium part of this containing goes to oxygen site and get attached, and double bond will break into single bond. This is your additional product. उसका कोई नाम नहीं होता है, additional product. अभी इस प्रोडक्ट के साथ क्या करना है, हमको थोड़ा वाटर डाल देना है, हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक मीडियम में. तो हो गया RRCHO, इधर से एक H, RRCHOH सेकेंडरी अल्कोहल प्लस MgOHI और MgOHX. सिंपल सा रिएक्शन. सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड. सेकेंडरी अल्कोहल वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम योर aldehyde. सेकेंडरी अल्कोहल विल प्रिपेयर. हो गया. देन वी विल गो टू दिस रिएक्शन डिटेल्स नाउ. सेकेंडरी अल्कोहल, लेट्स सी योर एग्जांपल. R के बदले हम CH3 डाल सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH. दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड और यू कैन से ऑल्सो इथानॉल, और इसको पढ़ते हैं IUPAC नेम इथानॉल. अभी इसको रिएक्शन करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX CH3MgI. बस वही एडिशन, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन इधर पॉजिटिव नेगेटिव अटैक हुआ तो इसको इधर अटैक करना है और इधर ये जाके अटैक करेगा. तो हो गया आपका CH3COMgI, जैसे उससे पहले किए थे, सिर्फ वो ये आपका डुप्लीकेट. क्लियर? R के बदले CH3 डाल दीजिए, X के बदले I. तो हो गया ये CH3C वाटर हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक मीडियम में. नेक्स्ट स्टेप में CH3CH3CHOH, CH3CH3CHOH सेकेंडरी अल्कोहल प्लस बाई प्रोडक्ट मिलेगा आपको
MgOHI. This is your isopropyl alcohol. Isopropyl alcohol, secondary alcohol. So secondary alcohol can be manufactured from your any aldehyde except your formaldehyde. All aldehyde, any aldehyde react with the Grignard reagent to form your secondary alcohol. Now how can you manufacture the tertiary alcohol? So prepare tertiary alcohol from Grignard reagent. तीनों तरह का अल्कोहल हम बनाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम योर Grignard reagent. So your Grignard reagent tertiary alcohol हम कैसे बना सकते हैं? You just take your ketone RCOR. This is your ketone. If a ketone react with the Grignard reagent, ketone react with the Grignard reagent. This is ketone and this is Grignard reagent. ये हो गया कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, अल्काइल नेगेटिव. तो कीटोन यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा वैसे ही इसका पॉजिटिव चलेगा इधर और इसका नेगेटिव चलेगा इधर. तो क्या हो जाएगा? RCOMgX R. अभी उसको हाइड्रोलिसिस कर दीजिए वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा? RRRCOH, 3 वाटर मॉलिक्यूल RRRCOH टर्शियरी अल्कोहल RRRCOH प्लस your MgOHX byproduct. So this is your 3 degree वाला alcohol or tertiary alcohol is prepared from Grignard reagent. So when ketone react with the Grignard reagent, so like this previously addition reaction will occur. So इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ चलेगा और एक एडिशनल कंपाउंड ऐसे बनेगा. उसका कुछ नाम नहीं होता है, एडिशनल कंपाउंड जो कि बहुत सा अनस्टेबल है, उसको हाइड्रोलिसिस कर दीजिए एसिडिक मीडियम में. हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, देन RRRCHOH, बाकी बाई प्रोडक्ट आ गया आपका MgOHX. दिस इज टर्शियरी अल्कोहल. इफ विल गिव एग्जांपल है जनरल रिएक्शन है, पॉज करके लिख सकते हो. सो एग्जाम में आ सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन विल राइट दिस वन. एग्जाम में अभी एग्जाम में आप R के बदले CH3 डाल सकते हो, CH3 एग्जाम्पल के साथ. एसीटोन इसको कहते हैं, इस मॉलिक्यूल को एसीटोन कहते हैं. अभी R के बदले हम CH3 डाल देते हैं, X के बदले आयोडीन, ब्रोमीन जो भी डाल सकते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, बस वही सेम थिंग. R के बदले इधर CH3 तीनों मिथाइल ग्रुप आ गया. X के बदले आयोडीन डाल दीजिए. अब ये हो गया ये आपका CH3. दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड योर टॉट ब्यूटाइल अल्कोहल. सो सिंपल ही रिएक्शन है. तो और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड निकलेगा. बाई प्रोडक्ट, उसको बाई प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है. तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो नाउ वी नो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, ऑल द मेथड्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस. नो, अनदर मेथड विल बी द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. सो ऑलरेडी 3 मेथड्स वी डिस्कस्ड. नाउ मेथड नंबर 4. Method number 4, your reduction of carbonyl compounds. Reduction of carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन से आप कैसे निकाल सकते हो अल्कोहल. रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. सो बेसिकली बच्चों लोग, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, जिसमें वो C डबल बॉन्ड O होता है. कार्बोनिल कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग कंपाउंड. दिस इज कार्बोनिल ग्रुप. यू कैन से दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप. इट इज कंटेनिंग बाय योर aldehyde RC डबल बॉन्ड OH. इट कंटेंट में भी कीटोन भी दिखा सकते हो, RC डबल बॉन्ड O. इट ऑल्सो कैन बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड. और एसिड क्लोराइड, चलो एसिड क्लोराइड में भी बना सकते हैं और ईस्टर में भी बना सकते हैं, RCOR डैश ईस्टर. और एसिड अनहाइड्राइड में भी बना सकते हैं, RCO. दीज आर सम कार्बोनिल कंपाउंड्स वेयर द C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज देयर. तो सारे जितना सारा कार्बोनिल कंपाउंड है, यदि हम उसमें रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे? रिडक्शन. उसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन को ऐड करना है. तो इन प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, लाइक यहाँ पर निकेल दे सकते हैं, प्लैटिनम दे सकते हैं, पैलाडियम जैसे मेटल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हो सकते हैं. दिस इज योर कैटालिटिक रिडक्शन. सो अल्डिहाइड को यदि रिडक्शन आप बनाते हो, अल्डिहाइड को रिडक्शन करते हो, चाहे तो कीटोन को रिडक्शन करो,
नहीं तो एसिड को भी रिडक्शन करो, जिसको भी रिडक्शन कर नहीं तो ईस्टर को भी रिडक्शन करो और एसिड अनहाइड्राइड को भी रिडक्शन कर सकते हो। चाहे जो भी कार्बोनिल कंपाउंड का आप रिडक्शन कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। ईस्टर, चलो अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हम डाल सकते हैं। इधर कीटोन में भी हमारा बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, सोडियम बोरोन हाइड्राइड में एक बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, और इधर भी नहीं तो ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। ये जो नाम लिख रहा हूँ ना, लिथियम हाइड्रोड एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड और निकल प्लैटिनम पैलेडियम, ये सब कैटालिस्ट है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। समझ में आ गया? जैसे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पिछले से क्लास पर बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, ऐसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात किए थे। उसी तरह ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यदि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यहाँ पर डाल के हम रिडक्शन कर सकते हैं। देखो रिडक्शन कैसे होता है, सिंपल सा रिएक्शन है, चाहे वो अल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो ईस्टर हो, आप जिसको भी रिडक्शन करोगे आपके लिए आंसर एक ही मिलेगा, आंसर मिलेगा अल्कोहल। क्या मिलेगा? अल्कोहल निकलेगा। द प्रोडक्ट इज योर अल्कोहल कंप्लीटली। तो हमको अल्कोहल बनाने के लिए ये भी तरीका है, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर जैसे कंपाउंड को हम रिडक्शन बनाने से हो जाएगा। चलो रिडक्शन बनाते हैं, कैसे होता है। तो सिंपल सा एडिशन होगा, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ इज गेटिंग जो CHOH हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ विल कन्वर्टेड टू CHOH, CHOH। समझ में आ रहा है ना? तो इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, इधर एक हाइड्रोजन लगेगा, एडिशन होने से तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर CHOH आ जाएगा, तो सिंपल सा अल्कोहल बन जाएगा। तो इधर एक हाइड्रोजन आता है, इधर एक हाइड्रोजन आता है, तो हो गया आपका एडिशन में RCHHOH। तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं RCH2OH। तो अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल। अल्डिहाइड को आप रिडक्शन करने से मिलेगा आपको ऐसे RCHHOH लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं RCH2OH, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड इज फ्रॉम जो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अभी सेकेंडरी अल्कोहल को वैसे रिडक्शन कीजिए तो इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन जाएगा, जितना हाइड्रोजन चाहिए उसको दीजिए रिडक्शन करने के लिए, तो ये बन जाएगा आपके लिए क्या? सेकेंडरी अल्कोहल, RRCHOH। दिस इज प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अल्डिहाइड को रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल, आप कीटोन को रिडक्शन करोगे, रिडक्शन करने के लिए सोडियम बोरोन हाइड्राइड डाल सकते हो NaBH4, तो जिसका 4 हाइड्रोजन है, तो चलो इधर जे हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन आप लगा सकते हो, तो रिडक्शन होने से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हाइड्रोजन हम डाल सकते हैं, इधर 4H डाल दीजिए, जो भी, तो इधर क्या होगा RCH2OH, RCH2OH अल्कोहल मिलेगा, उसके साथ वाटर भी निकलेगा बैलेंस करने का। सपोज H हो गया RCHHOH, और जो H2 को एक वाटर ऑक्सीजन हो गया, वाटर RCH2OH, और एक HO वाटर मिल गया। क्लियर? तो ये हो गया आपका अल्कोहल मिलता है। ईस्टर को भी रिडक्शन करोगे वही सेम आएगा, ईस्टर RCOR-, ये मिलेगा 2 अल्कोहल, 4 हाइड्रोजन आप ऐड करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इधर हाइड्रोजन आएगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक है, CHOH हो जाएगा, RCH2OH, RCH2OH प्लस R-OH, 2 अल्कोहल मिलेगा, RCH2OH, R-O और एक H, R-OH। यदि कैलकुलेशन में लिया जाए तो चाहे वो अल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो एसिड हो, और चाहे वो ईस्टर हो, अब जिस कंपाउंड से इस कार्बोनिल कंपाउंड का यदि रिडक्शन करोगे, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन जाके किसी पे ऐड करना है, तो ऐड करने से उसका C डबल बॉन्ड O ब्रेक होके क्या हो जाएगा? CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH में कन्वर्ट हो जाए, तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो रिडक्शन होने से आपको मिलेगा CHOH, अल्कोहल मिलेगा, सिंपल सा। तो इसके लिए ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं, कौन से के लिए? दिस इज योर कैटालिटिक रिडक्शन, दिस इज जो केमिकल रिडक्शन होता है। ओके, तो रिडक्शन, सो सिंपल सा क्वेश्चन है रिडक्शन। इसको जिसको भी रिडक्शन पूछेगा, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ओके, ईस्टर, एसिड डेरिवेटिव, इसको रिडक्शन करने से हमको क्या मिलेगा? अल्कोहल। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे लोग। तो दिस इज योर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। क्लियर? नाउ we'll discuss in next class, we'll discuss the properties of alcohol.